Good morning, my dear student. Today we will continue class 8 SST, chapter 7. Your chapter 7 is the weavers, iron smelters and factory owners. In this chapter, we will discuss your two major industry which was flourished in India during 18th century. But it was very strange matter with us that when the European companies they reached India and they obtained the huge amount of profit of our industry, and thereafter gradually they destroyed it. The industrialization which happened in Europe, some historians believe that whole industrialization based on our Indian money, हमारे यहाँ से जो इंडिया से जो प्रॉफिट्स मिल रहे थे उनके आधार पर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ. In my previous video, we were discussing about the textile industry. We will discuss in whole chapter the two industries, the textile industry and iron and steel industry. We are discussing in my previous video the textile industry, where we discussed that what words tell us the stories about textile industry of India. भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को शब्दों में कैसे व्याख्या किया गया, इन चीजों पे हम बात कर रहे थे. और हमने वहां पे दो बातों पे बात की. हमने कहा कि द कैलिको दैट वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द कैलिकट्स व्हिच वाज यूज्ड फर्स्ट टाइम बाय पोर्टुगीज, एंड सेकेंड वर्ड व्हिच I taught you in my previous class, that word was the piece goods. That word used for the Britishers for our Indian textile industry. The whole Indian textiles, for that word, one word used by the Britishers, that was the word, the piece goods. The piece goods, usually woven cloth pieces that were 20 yards long and 1 yard wide. Now look at the name of the different varieties of cloths in book. Among us, the pieces ordered in bulk were printed cotton cloths called the chinch. Third word, chinch. तीसरा शब्द आपको मिला chinch. The Cossacks for the khassa and the bandan. What I am telling, that if you will see the whole paragraph, then you find out the various word which was used for the textile industry, which reflect the textile industry. आइए इसी जो डिटेल्स है, जो हमारे पास जो आई मीन टू से दैट जो डिटेल्स है ऑर्डर बुक है उनके अकॉर्डिंग बात करते हैं. इफ यू विल ऑब्जर्व दिस ऑर्डर बुक, देन वी विल सी द वैरायटी ऑफ द टेक्सटाइल एंड देयर नेम्स. थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया जाता था उन्हें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे. उन्हें ये व्यापारी सिंज, कोसा या खस्सा और बंडाना कहते थे. इट मीन्स चींज वन वर्ड, and then kossa या बंडाना. कह रहा है खोसा या कस्सा, सॉरी खोसा या कस्सा, और 4 वर्ड जो है वो उनको बंडाना बोले. बंडाना, इस 4 वर्ड आपको दिखाई दिए. इन चारों वर्ड की सहायता से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कपड़े के नाम अलग अलग जगह पे अपनी उपयोगिता के आधार पर अलग अलग थे. कहता है जिन सूती कपड़ों पे सुंदर कढ़ाई का काम होता था, जो छापेदार थे, ये पूरे काठ, ये पूरी चीजें व्यापारियों के द्वारा सिंड, कोसा या खस्सा या बंडाना कहा जाता था. क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी का सिंड शब्द कहां से आया? डू यू नो वेयर द इंग्लिश टर्म सिंड comes from? It is derived from the Hindi word chint.
ये हिंदी के शब्द से आया। जी हाँ, हिंदी का छींट शब्द, छींट, आप देखेंगे छींट, आप इफ यू विल डिस्कस दिस इश्यू दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ छींट with your mother, then your mother clearly what give you information about छींट। छींट के कपड़े क्या होते हैं, अपनी माँ से पूछिए, मदर से पूछिए, वो इस बात को क्लियरली बताएंगे आपको कि छींट का कपड़ा क्या होता है। That cheat word used by Europeans as a change, उनको चींट कहा गया। A cloth with small and colorful flowery designs from the 1680s. There started a craze of printed Indian cotton textile in England and Europe, mainly for the exquisite flora design, fine texture, and related the cheapness. Rich people of England, including the Queen herself, wore cloth of Indian fabric. You can easily understand the importance of Indian textile and their what, कितना लोकप्रिय था, फेमस कितना था उसके बारे में, कि ये इंडियन जो कपड़े थे वो यूरोप में बड़े पैमाने पर लोगों के द्वारा प्रयोग किए जा रहे थे। यूरोपियंस स्पेशली ब्रिटेन, जहां पे ये कपड़े बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे। ये कपड़े न केवल कॉमन आदमी के द्वारा पहने जा रहे थे, बल्कि ब्रिटेन की महारानी के द्वारा भी इस इंडियन क्लॉथ्स को पहना जा रहा था। कह रहा 1680 की डिकेड्स तक इंग्लैंड और यूरोप में ये जो चेंज कपड़े थे, छापेदार भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्तियों, बारीक रेसे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़ों का अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं, बल्कि इंग्लैंड की महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनने लगी थी, पहनती थी, और ये अपने में एक यूनिक बात थी। आई मीन टू से दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू, कि द इंडियन क्लास दैट कॉल्ड द खस्सा, चेंज और कसा और बंडाना, this was used by the Europeans very much. It was famous in European. Gradually, the cloth, it derived from the what, the cloth, the chintz cloth, with a small and colorful floral designs. And during or from the 1680s, they started the craze for the printed Indian cotton textile in England and European, mainly for their exquisite, the flora designs, fine texture and the relative cheapness. अपने सस्ते होने के कारण, अपने सुंदर तरीके के जो कढ़ाई और नक्काशी थी उसके कारण, और हल्के कपड़े के कारण, आरामदायक कपड़ों के कारण, ये जो कपड़ा था चेंज, ये भारतीय जो कपड़े थे वो पूरे यूरोप में तेजी से फैल रहे थे, लोगों में लोकप्रिय हो रहे थे। यूरोप के समृद्ध लोग के साथ साथ ब्रिटेन की महारानी भी इस कपड़े को पहन रही थी। सिमिलरली द वर्ड द बंडाना नाउ रेफर टू एनी द ब्राइटली कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ फॉर द नेक और हेड। ओरिजिनली द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड द बंडाना, हिंदी फॉर टाइम, and referred to variety of brightly colored cloth produced through a method of tying and dyeing. Dear student, the second word, fourth word, the bandana. What is the meaning of bandana? बंडाना एक ऐसा कपड़ा था, बंडाना का प्रयोग कैसे किया जाता था? बंडाना, that type of cloth used for the Europeans in their neck or on their head. बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहने जाने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता है। एक ऐसा कपड़ा था जो चटक था, छापेदार था, कलरफुल थी, डिजाइन बनी हुई थी, जिससे वो लोग गले में और अपने सर को ढकने का काम करते थे। ये शब्द हिंदी के बांधने शब्द से आया है, बांधने से बना हुआ है।
बांधने शब्द से निकला हुआ शब्द है बंडाना। इस श्रेणी में चटक रंगों वाले ऐसे बहुत सारी किस्मों के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंग साजी की विधियों से ही बनाया जाता था। वहीं आप इनकी उपयोगिताओं को देखिए। If you will see the figure 5 and figure 6, then you find the photographs of these cloths, especially figure 6, where the bandana design given. It belongs to early 20th century. Note that line of the runs through the midline. Do you know why in the odhani, two tie and dye silk pieces are sewn together with gold threaded embroidery? Bandana patterns were mostly produced in Rajasthan and Gujarat. अगर आप इन चीजों को बंडाना को देखें तो कहता है कि आप बंडाना को देखिए, कपड़े के मध्य में गुजरती हुई जो रेखा है, लाइन है, उनको देखिए, उनसे आपने क्या समझा। कहता है दरअसल ये जो लाइन है ओढ़नी में दो बांध कर रंगे गए हैं, आधे आधे पे ओढ़नी को अलग अलग करके रंगे गए। द एंड डाई, रेशमी कपड़े के टुकड़े को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे से सी दिया गया है। बंडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। इफ यू विल ऑब्जर्व दिस टाइप ऑफ क्लॉथ देन यू फाइंड देयर इंपॉर्टेंस। बंडाना जो शब्द था वो शब्द हिंदी के बांधने से ही निकला था, जिसमें चटक श्रेणी के कपड़े का इस्तेमाल, रंगसाजी जिसपे अच्छे कलरफुल किए गए थे, पेंटिंग्स बनाई गई थी, का यूज इसमें किया गया था। जो किस लिए किया गया था? आई मीन टू से दैट बंडाना हिंदी ऑफ टाइम एंड रेफर्ड द वैरायटी ऑफ द ब्राइटली कलर्ड क्लॉथ्स प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट द मेथड्स आर इंक एंड डाइंग. These were other cloths in the order book that were noted by their place of origin. कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा and Charupur. The widespread use of such word show how the popular Indian textile had become on the different part of the world. कहता है अगर आप नोटबुक्स में देखें, जो ऑर्डर बुक है उसमें देखें, तो कपड़ों के लिए कई सारे शब्द का प्रयोग अलग अलग स्थानों के अनुसार किया गया है। कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारूपुर आदि, जो इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। इफ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिटेल्ड विथ गिवन इन ऑर्डर बुक, then you find out the cloth that was what the cloth was used. ये जो क्लास था वो यूज किया गया था उस जगह के नाम के आधार पे, और फिर उसी के नाम के आधार पे इसका विकास हुआ। धीरे धीरे उसी के नाम से फेमस होते चले गए, और इस तरीके से भारतीय कपड़ों का प्रयोग, उसके विस्तार, उनके नाम, हमने उनके नाम को देखा। द कैलिको, द पीसेस गुड, चिंद, कोसा या खस्सा, एंड सेकेंड वर्ड बंदाना, बंडाना, चिंद, ये सारे वर्ड्स यूज किए जा रहे थे। इसके अलावा कुछ ऐसे कपड़े थे जो अपने स्थान के नाम पे जाने जाते थे। आई मीन टू से दैट सम अदर वर्ड्स विच वाज यूज्ड बाय द क्लॉथ फॉर देयर ओन ओरिजिन और नेटिव प्लेस वेयर दे मेड, जहां वो बनाए गए थे उनके आधार पे जाने जाते थे। लाइक कासिम बाजार, पटना, चारूपुर, उड़ीसा. This type of class also mentioned in the order book. Dear student, we are going to read your next topic, the Indian textile in Europe markets. हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट्स. क्या कहता है ये नेक्स्ट टॉपिक? व्हाट द नेक्स्ट टॉपिक वांट टू टेल यू कि
In this topic, we will try to understand that the use and importance of the Indian textiles. Indian textiles. Indian textiles in European market. Indian textiles in European markets. My dear student, here you can later we are going to read your next topic. We will read the Indian textile in European markets. Dear student, in this chapter, we are going to discuss that the importance of the Indian textile in whole Europe and their markets. पूरे यूरोप के मार्केट्स में भारतीय कपड़ों की क्या महत्ता थी, इनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं. कहता है बाय द अर्ली 18th century, worried by the popularity of Indian textile, wool and silk makers in England began protesting against the import of Indian cotton textiles. In 1720, the British government enacted a legislation banning the use of the printed cotton textiles changed in England, and interestingly, the act was known as the Calico Act. At the time, the textile industry had just begun to develop in England. Unable to compete with Indian textile, English producers wanted secure markets within the country by preserving the entry of Indian textiles. The first to grow under government protection was the calico, the printing industry. Indian design was now the imitated and printed the England on what muslins are plain underpieced Indian cloths. My dear student, what we are trying to understand, हम क्या कहना चाहते हैं. अगर आप इस चैप्टर को पढ़ें, इस टॉपिक को देखें, if you will read this paragraph, then author want to inform you what कि 18th century की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड ने ऊन और रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे. It means having seen the popularity of Indian textiles, the European traders, they opposed the Indian cloths. क्या करें, उसका विरोध करने लगे. They were worried by the popularity of Indian textiles, wool and silk markets in England, began protesting against the importance of Indian cotton textile. In 1720, the British government enacted a legislation banning the use of printed cotton textile changed in England. Interestingly, this act was known as the Calico Act. How strange. It means directly this word gives us information about that the popularity of Indian textile in Europe. Indian government also aware of that and the pressure of the industrialist of the Britain. The new act, a new legislation that has passed by the British Parliament, that is called Calico Act. According to that, the Indian cloths, Indian textiles that has banned in England, बैन कर दिया गया इंग्लैंड में. फिर कहता है कि इस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़े के कारखाने खुल रहे थे. एंड ब्रिटेन स्टार्टेड एट द टाइम द टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैड जस्ट बिगन टू डेवलप इन इंग्लैंड. Unable to compete with the Indian textiles, English producers wanted a secure market within the country by the preventing
and entire Indian textiles. The first to grow the government productions was the calico printing industry. Indian design were now limited, and the printings in England within muslins are plain, unblazed Indian cloths. इंडियन क्लास डियर स्टूडेंट कहता है कि अब यहां से उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ों के कारखाने खुलने लगे, फैक्ट्रीज खुलने लगी। भारतीय कपड़ों के सामान जो लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक थे अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे। भारतीय कपड़े यूरोप में ब्रिटिश मार्केट में प्रवेश ना कर सकें, इसके लिए वो चाहते थे गवर्नमेंट ऐसे रूल्स बनाए जिससे इंपोर्ट पे, इंडियन टेक्सटाइल इंपोर्ट्स पे पूरी तरीके से बैन कर दे लग जाए। इंग्लैंड में केवल उन्हीं के कपड़े बिके जो केवल इंग्लैंड में बने हों। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। सबसे पहले जो मसलिन्स थे, मलमल थे, बिना माड़ वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। Britain started what? The Indian design were now the imitated and printed in England on white muslins or the plain unbleached Indian cloths. The first, I mean to say that what? Here I want to understand you that at the time the textile industry had just begun to develop in England. Indian type of the cloths. The British industries started to made in their factories. And they unable to compete with the Indian textiles. English producers wanted a secure market within the country by preventing the entry of Indian textiles. So that's why they wanted that the European Parliament launched a legislation that according to that act, that Indian textile completely banned in England, and England only and only their cloths which they made, that was what, कि वही पूरे यूरोप में, वही पूरे ब्रिटेन के मार्केट में बेचा जाए, इस तरीके की चाहते थे वो। और इससे यूरोप ने क्या किया, ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने अपने यहाँ ही इस तरीके के फैक्ट्रियां लगवाई, कैलिको छपाई का उद्योग को सरकारी संरक्षण दिया, और यहाँ से मलमल और जो अनब्लीच्ड कपड़े थे उनका प्रयोग उनको बनाया जाने लगा। भारतीय कपड़ों के साथ साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की जरूरत दिखाई देने लगी। 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। इससे परंपरागत तकलियों का उत्पादकता काफी बढ़ गई। 1786 रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प स्टीम इंजन का आविष्कार कर दिया, जिसे सूती कपड़ों की बुनाई में क्रांतिकारी रूप से बदलाव आया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। ब्रिटेन में इन नए तरीके की जो प्रयोग हुए थे, जो नई तकनीकी, जो नई मशीनरीज इन्वेंट की गई थी इनके द्वारा। इट मीन्स द कंपटीशन विद द इंडियन टेक्सटाइल आल्सो लेड अ सर्च फॉर द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इन इंग्लैंड। In 1764, the spinning jenny was invented by the John Key, which increased the productivity of the traditional spindles. The inventions of the steam engine by Richard Arkwright in 1786 revolutionized cotton textile weaving. Cloth could now be woven in the immense quantities and the cheaply too. However, Indian textile continued to dominate world trade till the end of the 18th century. European trading companies, the Dutch, the French, and the English, made enormous profit out of this flourishing trade. These companies purchased the cotton and silk textile in India by importing silver
But as you know, chapter 2, when the English East India Company gained the political power in Bengal, it no longer had to import the what? The precious metal to buy Indian goods. Instead, they collected revenue from the peasants and jamidar in India and used this revenue to buy Indian textiles, which we discuss in chapter 2, where we discuss the Battle of Plassey and then after the Britishers' possession on the Bengal. When they established himself in Bengal as a ruler, they started to collect the revenue. In the initial time, they have to what? क्या देना पड़ता था उन्हें? कुछ पैसे देने पड़ते थे इन चीजों को खरीदने के लिए। लेकिन बाद में परिस्थितियां बदली जब अंग्रेजों ने बंगाल पे कब्जा कर लिया, बंगाल को अपने अधिकार में ले लिया, तो उन्होंने भारतीय रेवेन्यू से ही पूरी व्यवस्था को, भारतीय कपड़ों को, भारतीय सामानों को खरीदना शुरू किया। भारत से प्राप्त किए गए बहुमूल्य मुद्राओं से, सोने से, चांदी से ही भारतीय चीजों का व्यापार शुरू कर दिया गया। कहता है कि इन चीजों को देखिए, इसके बावजूद दुनिया के बाजारों में भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सेंचुरी के लास्ट तक बना रहा। इतने सारे एक्ट भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे इम्पोज किए जा रहे थे, उसके बाद भी भारतीय कपड़ों ने 18वीं सेंचुरी तक अपनी डिमांड यूरोपियन मार्केट में बनाए रखी। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य जो यूरोपियन कंपनीज थी, ट्रेडिंग कंपनीज थी, ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया, अकूत पैसे कमाए। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थीं, परंतु ये आपको पता है कि हमने अब चर्चा भी की कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल अपने अधिकार में ले लिया, तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैसा देने के बदले, अपने देश से पैसा लगाने के बदले भारत से कलेक्टेड रेवेन्यू के आधार पर इन वस्तुओं को खरीदना शुरू किया। What I am telling that even that the various type of policies, various type of act that was launched, that was the imposed on the Indian textile industries, Indian textiles, even if Indian textiles that became the popular in European market during 18th century. In the last 18th century decades, we have seen that the European traders like Dutch, French, Britishers also, they collected the huge amount of income with the help of that textile industry. They have to pay the precious metal for that. But gradually we have seen that the conditions that has totally changed. The Britishers involved himself in Indian politics. वो इंडियन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर लिया। They conquered the Bengal. They collected the revenue, and on the basis of that, they have huge amount of the Indian precious metal like silver and gold, and they started the trade with the help of that gold. It means भारत के पैसे से, भारत में ही व्यापार, भारत की चीजों को भारत के पैसे से खरीदा जाने लगा। ये यूनिक बात थी। यूरोपियंस ने यही किया, ब्रिटेन ने यही किया, और यहां से पूरी परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगी। Who were the weavers? The next topic, that is very interesting. Who was the weaver? Who was the weaver? Weavers कौन थे? Important question. Weavers often belong to communities that specialized in weaving. Their skill were passed on from one generation to next generation. The Tanti weavers of Bengal, the Chulaha or Momin weavers of North India, Sel and the Koikollar and the Wang of the South India are some of the communities फेमस फॉर वीविंग। वीवर्स के अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम। कौन थे वीवर्स? कहता है कि जो वीवर्स थे आमतौर पर जो बुनाई का काम करते थे, वीविंग काम करते थे, वीवर्स देयर मेन वर्क दैट दे वीव द क्लॉथ्स। वीवर्स
They belongs to community that specialized in weaving. Weavers, they were the native people, they were local people. वीवर्स जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय लोगों का ग्रुप्स था जो बुनाई का काम करते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से अगली जनरेशन, इनका मेन ऑक्यूपेशन था। ये लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाने जाते थे। बंगाल के तांती, नॉर्थ इंडिया के जो जुलाहे या मोमिन, साउथ इंडिया के साले व कैकोलार और दिवांग समुदाय के बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। ये जो कम्युनिटीज थी, इट मीन्स इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, साले एंड कोकलार एंड दिवांग ऑफ द साउथ इंडिया आर सम ऑफ द कम्युनिटीज फेमस फॉर वीविंग. The first stage of production was spinning, work done mostly by the women. The charkha and the takli were household spinning the instruments. The thread was spun on the charkha and rolled on takli. When the spinning was over, the thread was woven into cloths by the weavers. In most communities, weaving was task done by men for colored textiles. The thread was dyed by the dyers, known as rangraj, for the printing cloths, and the weaver needed the help of specialist block printers, known as the chapaigars. The handlooms weaving and the occupations associated with it provided the livelihood for the millions of Indians. Here we find the three words rangraj, chapaidar, and the weavers. हमने यहाँ पे दो इंस्ट्रूमेंट्स की बात की, चरखा एंड तकली. हमने इन चीजों के साथ कई बातें क्लियर कर ली कि किस तरीके से सूत काटना कपड़ा का सबसे पहला चरण था. कपड़ा मीन्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे फर्स्ट वक्त था वीविंग थ्रेड, सूत काटना. तो फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वाज स्पिनिंग, वर्क डन मोस्टली बाय वीमेन, जिसको महिलाओं के द्वारा किया जाता था. चरखा और तकली घर घर में अधिकांशतः महिलाओं के पास ही रहता था. उनके यूज का मुख्य साधन था ये. महिलाएं धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट कर तैयार कर देती थीं. जब कताई पूरी हो जाती तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे. ज्यादातर जो कम्युनिटीज थी जो बुनाई का काम करते थे वो पुरुष थे. इट मीन्स स्पिनिंग का काम विमेन्स करती थी, वीविंग का काम मेल करते थे. पहले स्पिनिंग फिर वीविंग होती थी. और फिर जब कताई बुनाई का काम पूरा हो जाता था तो रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे. छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकर को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की जरूरत होती थी. ठप्पे से छपाई करते थे. हथकरघों पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी और ये पूरी व्यवस्था प्रॉपरली रन करती थी. इस तरीके से वीवर्स की पूरी काम चलते थे. But gradually we have seen this whole condition that has changed when the Britishers reached India and they decided that at any rate, at any cost, we have to demote the Indian textile industry. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल. गुड बाय एंड टेक केयर.